Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moshini Roy. So today in this video, I'm going to talk about a very sensitive and yet very important topic about manifesting relationships and self-worth issues, self-esteem issues, and seeking validation. मतलब ये कितना dangerous हो सकता है? So that's the topic of today's conversation. Okay. So I have come across many such women within the scope of providing guidance coaching and also otherwise जहाँ पे females are young girls and also older women are offering their own sacred sexuality as the bribe to attract men, their attention, their validation. ठीक है? So it's like they are telling these guys कि मतलब दिस इज लाइक ए बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग बना हुआ है कि दिस इज ऑल मेन वांट. ठीक है, मेन कम टू रिलेशनशिप ओनली फॉर द फिजिकल थिंग्स. ठीक है, एंड दे बिलीव दैट दिस इज द ओनली वैल्यू दैट दे हैव इन अ रिलेशनशिप. ठीक है, बिकॉज डिफॉल्ट सेटिंग ही वो बना हुआ है एंड दिस इज अ जनरेशनल थिंग बाय द वे. ये कोई मतलब हम लोग नया नहीं क्रिएट कर रहे हैं. ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो बिलीफ सिस्टम है कि मेन कम टू द रिलेशनशिप ओनली बिकॉज ऑफ दिस, मेन आर इंटरेस्टेड इन फीमेल्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ये जो चीज है ये बहुत ही जनरेशनल चीज है एंड इसके चलते फीमेल्स बाय डिफॉल्ट assume that if they give that to men, if they give something which men enjoy, then men will also give women something which females enjoy. That is validate करना, उनको कॉल करना, उनको मैसेज करना, उनसे मिलना, उनसे अच्छी अच्छी बातें करना, उनको टाइम देना, उनको थोड़ा अटेंशन देना. ठीक है, उनको ऐसा एहसास कराना कि somebody is there in their life, उनको less lonely feel कराना. ठीक है, and so on. So ये सारी चीजों को पाने के लिए फीमेल्स, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं दे नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट देम. सो दे आर गोइंग इनटू दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट कि दे विल बी इन दिस काइंड ऑफ ए गिव एंड टेक रिलेशनशिप जहाँ पे द गर्ल्स आर गिविंग themselves, offering themselves literally on a platter to this men, and in exchange they want the love and attention and affection and the companionship and the safety, security and commitment and loyalty and all sorts of things from this man. Okay, so this kind of exchange, from the female's side at least, they call it a relationship, right? But I think that this is the time that these females who are getting into this sort of arrangements, they really need to ask themselves, is it really a relationship, or is it a display of their own vulnerable self-esteem, self-worth issues? This kind of an arrangement is the direct evidence कि उतना उनका सेल्फ वर्थ कितना ज्यादा लो है कि उनको खुद को इस तरीके से किसी को ऑफर करना पड़ रहा है जस्ट टू गेट द validation, to get a call, a message, little bit of companionship. Matlab, the guy doesn't even care about them. They only meet the girls for this particular act, the sexual activity, and this is called a date. Apart from that, the guy doesn't want to meet the girl. So that means the only value that she has in the guy's life is only this.
सो क्या इस अरेंजमेंट को आप रिलेशनशिप का नाम दे सकते हो? राइट. सो आई रियली वांट this females to at least think about it, because ऐसे एक अरेंजमेंट में रहना, it's very dangerous for a woman. Okay. बिकॉज क्या होता है, देखो, ऐसा जो अरेंजमेंट है जिसको इन्होंने रिलेशनशिप का नाम दिया है, इसका तो पहले ही फाउंडेशन वीक है. क्योंकि आपके दिमाग में अगर ये बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि मेन ओनली वांट दिस, ठीक है, तो आपने तो दे दिया है उसको जो चाहिए था, तो अभी वो क्यों रहेगा आपके पास? दिस इज देन द नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट सेटिंग का लाइक बाय प्रोडक्ट, है ना? तो वो फिर क्यों रहेगा? सो देन दे विल नॉट commit to you, they will not be loyal to you, they will be not interested in you, they will be interested in somebody जहां से उनको नहीं मिला है ये चीज, isn't it? So आप by default committed ना होना from the guy side, लॉयल ना होना, आपके प्रति इंटरेस्टेड ना रहना, आपके प्रति एक लव केयर कंसर्न वाली भावना जेन्युइनली ना रहना, ये तो आप बाय डिफॉल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो ना फिर. बिकॉज अगर आपका बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही ये है, आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आपका बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही ये है कि मैन ओनली वांट दिस, क्योंकि ये जो बिलीफ सिस्टम है ये खाली आपका नहीं है या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड का नहीं है, दिस इज समथिंग जनरेशनल. यू वॉच ओल्ड मूवीज या फिर ओल्ड लाइक हिस्टोरिकल चीजों पे बनी हुई जो भी सीरियल्स बनते हैं या फिर मूवीज बनते हैं, आप उसको कभी देखना लाइक एन ऑब्जर्वर्स, ये ठीक है, आप थोड़ा उनको देखना, वो फीमेल्स कैसे बात करते हैं. मतलब सपोज एक राजा का, लाइक दे हैव मल्टीपल क्वींस, तो वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो किस तरीके का वार्तालाप वो लोग करते हैं अबाउट द गाय, अबाउट मैन, अबाउट लव, अबाउट ऑल दिस थिंग्स, कि अभी तक he has not got this from you, that's why he is interested in you, once he gets this he will be over you and he will go after somebody else. So this kind of thing was quite in vogue as a prominent belief system, ठीक है, and our generation is still suffering from that. I'm not saying all, because many people have really worked on themselves and they have come out of it, and it is possible to come out of it. I can vouch for it. ठीक है, इस तरीके की बिलीफ सिस्टम से बाहर आना पॉसिबल है, आप कर सकते हो ये चीज. इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ एस्टीम, इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ इश्यूज, इफ यू रियली डाइव डीप इनटू, मतलब आप क्या हो, आप में क्या अच्छाई है, कोई आपके साथ क्यों रहना चाहेगा, क्या आप खुद अपने साथ रहना पसंद करते हो, ठीक है, क्या आप खुद खुद के अंदर कुछ अच्छाई देख पाते हो. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ये इनर वर्क आपको करनी पड़ेगी खुद के साथ, नहीं तो ये जो बिलीफ सिस्टम है बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है. इफ यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन ऑल्सो, देन तो और भी भयंकर रूप से ये चीजें मैनिफेस्ट होंगी, तब तो आप उसके साथ रहने लग जाओगे, आपके बच्चे होने लग जाएंगे, आपकी बॉडी अजीब हो जाएगी प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद, पोस्टपार्टम, ठीक है, और मल्टीपल बच्चे हो गए तो फिर वो तो फिर रिपीटेशन हो गया, ठीक है. एंड मोस्टली लेडीज अपना ध्यान नहीं रखती है, ठीक है, एक बार शादी हो गया, बच्चे वगैरह हो गए, शादी से पहले वो लोग मतलब दे लुक लाइक ए ब्यूटी क्वीन, एंड उसके बाद दे स्टार्ट लुकिंग लाइक समथिंग एल्स, जो कि विच इज नॉट ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मैरिज, बट इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन सेल्फ नेग्लेक्ट, ठीक है. तो जितना आपका खुद का मतलब सब कुछ खराब होता रहेगा, तो वो तो और आपको एनहांस करेगा ना आपकी ये सारी जो बिलीफ सिस्टम्स है, ठीक है. सो अपने बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, एंड ऑल्सो यू हैव टू क्वेश्चन द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स दैट यू आर अट्रैक्टिंग, द सो कॉल्ड अरेंजमेंट्स और रिलेशनशिप्स, एज आई सेड, ड्यूरिंग दिस फेज, जब आप इस बिलीफ सिस्टम के फेज में हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि uh, अभी मैं 10 साल पहले जैसा मैं सोचती थी, ठीक है, 10 साल पहले, 15 साल पहले जिस तरीके की सोच मेरी थी ऑन ए डोमिनेंट
वाइब्रेशन लेवल। कभी कभी मोटिवेट हो गए, कभी कभी खुद के बारे में अच्छा फील किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ओकेशनल लाइक फाउंटेन ऑफ पॉजिटिविटी, वो ओकेशनल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट ऑन ए लाइक डोमिनेंट वाइब्रेशनल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। आज से 10-15 साल पहले जैसा मेरा था, तो मैं उसी हिसाब से अपने सारे दोस्त अट्रैक्ट करती थी, उसी हिसाब से मेरा अट्रैक्शन डेवलप होता था किसी के प्रति। मुझे कोई बंदा अच्छा लगता था उस टाइम पे, ठीक है, व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड ऑल दैट। सो अभी जो है, अभी मेरी बिलीफ सिस्टम्स काफी चेंज हो गई है। नाउ आई एम अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई विल नॉट लाइक दोज गाइज एनी मोर, ठीक है। क्योंकि अगर उस टाइम पे आई लाइक समबडी बिकॉज ही लुक्ड एट मी, सपोज आई एम सिटिंग इन ए क्लास, आई एम सिटिंग इन ए पर्टिकुलर कॉर्नर, आई एम नॉट एबल टू फील माई सेल्फ ब्यूटिफुल बाय माई सेल्फ, मुझे वो लड़के से मेरे को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, या फिर वो मुझे बार बार देख रहा है क्योंकि मैंने अपना बाल थोड़ा आज कुछ अलग बनाया है, या फिर मैं आज थोड़ा ज्यादा अच्छी लग रही हूँ, ठीक है। सो कोई लड़का मुझे कॉर्नर से बार बार देख रहा है, उससे मुझे वैलिडेशन हो रही है कि ओ वाओ आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, ठीक है। या फिर उसने किसी को मेरे बारे में कुछ बताया, मेरे बारे में कुछ पूछा, वो मुझे जानने को मिला, उससे मुझे वैलिडेशन हो रही है। आज के टाइम पे ऐसा होगा क्या? आई विल नॉट फील, ठीक है उसने, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन मुझे तारीफ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन गाली दे रहा है, उसकी मर्जी, वो जो करे करे, मेरे को क्या है। आई नो हु आई एम, आई नो व्हाट आई डू, आई नो हाउ आई एम, हाउ आई लुक, आई एम ओके विद एवरीथिंग दैट आई एम, ठीक है। सो द थिंग इज, अगर आपका खुद का बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि आपको वैलिडेशन लेने के लिए इस हद तक जाना पड़ रहा है कि यू आर इवन एक्सपोजिंग योर सेल्फ physically, mentally, emotionally, sexually to another person at such level, so then you really need to work on this, because this is a very dangerous that level जहां पे ना पानी यहां तक आ चुका है, ठीक है, पानी यहां तक आपके आ चुका है। because now I'm telling you very honestly, you can get pregnant, you can uh, get some sexually transmitted diseases, okay, you also run the risk of losing your reputation, ठीक है। एंड सपोज इन सब चीजों में से कुछ नहीं हुआ एंड किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन आपकी अंतरात्मा को ना पता है, यू विल फील लाइक यू आर यूज्ड। एग्जैक्टली यही चीज आपको फील होगा। सपोज वो बंदा आपको कमिट नहीं कर रहा है, आपसे लॉयल नहीं हो रहा है, वो आपका फोन नहीं उठा रहा है, वो आपको मैसेज नहीं कर रहा है, ही इज नॉट गिविंग यू एनी अटेंशन। अगर पहले देता था कुछ अटेंशन थोड़ा बहुत, अभी वो भी नहीं कर रहा है, और ऊपर से अगर वो किसी और को मैसेज कर रहा है, किसी और के पीछे वो भाग रहा है, यू विल फील बिट्रेड, यू विल फील यू आर बीइंग यूज्ड। लेकिन आपने ये सिचुएशन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है। यू कैन ब्लेम द गाय एज मच एज यू वांट, वो ठीक भी है कि आप उसको ब्लेम कर रहे हो, नो वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू यू, दैट आई नो। लेकिन यू एज अ वुमेन, यू ऑल्सो मस्ट वर्क ऑन योर ओन सेल्फ एस्टीम, योर ओन सेल्फ वर्थ, कि क्या आप इतने बेकार हो, क्या आप इतने बेकार हो, क्या आप इतने फालतू हो, क्या आप इतने वर्थलेस हो। इट डजेंट मैटर हाउ यू लुक, आप गोरे हो, काले हो, नाटे हो, लंबे हो, आपके सर पे ज्यादा बाल है, कम बाल है, ठीक है, आपके फेशियल फीचर्स अच्छे नहीं है या बहुत अच्छे हैं, आप चश्मा पहनते हो, आप हंसते हो तो आपके दांत बाहर निकल के आते हैं, ठीक है। आई मीन आई डोंट नो, आप स्किनी हो, फैट हो, कर्वी हो, ओवरली कर्वी हो, आई डोंट, मतलब कुछ मैटर नहीं करता है, आप कैसे भी हो, आप हाईली क्वालिफाइड हो या फिर आप फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़े हो, वॉट एवर एंड हु एवर यू आर, ठीक है। इफ यू आर a human being, you do have your, you must protect your dignity,
ठीक है. Love doesn't look like this. Let me tell you, love doesn't look like this, जहाँ पे this is the transaction which is going on. This kind of transaction, it is not love. It is simply you begging some attention, some affection कि अल्लाह के नाम पे मेरे को एक टेक्स्ट कर ले बाबा. You are doing this. ठीक है. So this kind of self-worth issues, मतलब it's only going to take you into a severe depression meanwhile. क्योंकि पता है क्या होगा, you will feel used, you will feel betrayed 100%. ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप का तो फाउंडेशन ही ठीक नहीं है. एंड अगर आप सोचोगे कि मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, इसको मैं मैनिफेस्ट कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, आपके अंदर शक्ति कहाँ बची है? वेयर इज द पावर, वेयर इज द स्ट्रेंथ इन यू? You are losing that power, that strength in that intercourse with this person who doesn't even love you, who doesn't even care about you. Right. So ये एक ऐसी चीज है, आप ना किसी को बोल सकते हो, ना आपके फ्रेंड्स को, मम्मी पापा को, किसी को कुछ नहीं बता सकते. आप अंदर ही अंदर आप घुटते चले जाओगे. You will feel so terrible about yourself. You will feel shame, you will feel guilt, you will feel horrible inside. ठीक है. और इस चीज को मैनिफेस्ट करना इस स्टेट ऑफ माइंड से बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आपकी बैटरी लेवल इधर तक आ गई है, इधर से इतना हो गया है. ओके. सो जब आपकी हालत ऐसी हो जाती है तो मोस्टली फीमेल्स अपने पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, बिकॉज ऐसा मोस्टली होता है टीनेजर्स में, या फिर वेरी लाइक 20ish पीपल, इवन 30s में भी नहीं होता है. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ. if you have not grown enough in your 20s, then you will continue to do this in your 30s, 40s, 50s, 60s as well. ठीक है. आपके लिए सवेरा होगा ही नहीं कभी. तो वही है कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे. अगर आप जॉब कर रहे हो, आप अपने जॉब पे ध्यान नहीं दे पाओगे. एंड आपका जो हेल्थ है वो खराब होता रहेगा. बिकॉज ब्यूटी इज व्हाट? ब्यूटी इज वीनस. वीनस इज व्हाट? फेमिनाइन एनर्जी. तो आपने क्या किया है? यू हैव काइंड ऑफ bartered system रहता है ना. You have kind of bartered your own feminine energy with little bit of validation. ये चिंदी चीज के लिए आप अगर हीरे दे दोगे किसी को, will it make sense? So you have given somebody something that they don't even deserve, they have not even earned it. ये बंदे ने क्या किया है आपके लिए? कुछ नहीं किया है. और आप इसको अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी फेमिनाइन एनर्जी आप दे रहे हो. ठीक है. तो क्या होगा ना, आपकी ब्यूटी खराब होती रहेगी, आपका हेल्थ खराब होता रहेगा. ओके. आई हैव सीन सम ऑफ दिस क्लाइंट्स जो कि इस तरीके की चीजों में पड़ के फिर दे गॉट सो सिक. ठीक है. क्योंकि इनकी अंतरात्मा उनको पनिशमेंट देती रहती है फिर इस चीज में, बिकॉज दे फील सो गिल्टी अबाउट इट. राइट. और उनका करियर भी नहीं बन पाता है, उनका पढ़ाई खराब होता रहता है, हर चीज में इनकी लाइफ एक बहुत ही डेंजरस लेवल पे पहुंच जाती है. ये फिर बोलते हैं मेरा कहीं पे ध्यान नहीं लग रहा है, मेरा पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रहा है. ये गोल्स तो बनाते हैं, मुझे ये क्रैक करना है, मुझे वो क्रैक करना है. इन कैसे करेंगे? इनका फोकस ही नहीं है, कोई अटेंशन ही नहीं है. बिकॉज फॉर ए फीमेल, आई एम टेलिंग यू, फॉर ए फीमेल हर फेमिनाइन एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. ये वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हमने जो ये सेक्सुअल लिबरेशन को हमने जो प्रमोट किया है, ठीक है, ये सारे जो एप्स बना के, ठीक है, डेटिंग एप्स में
हुकअप्स वगैरह ये सारी चीजें प्रमोट करके. Some females are feeling that they are being empowered, that now they are sexually so liberated that they can do anything anywhere with anybody they want. They can do it and never recall it again. They can change people, their partners, like wet sheets. These are the things which are being promoted uh, in a way as like women empowerment. ये empowerment नहीं है, ये exploitation है. किसी फीमेल को बोला जा रहा है कि आप जितना अपना कपड़ा उतारोगे उतना आप empowered बनोगे. How much sense does it make? Yes, as a female, you can wear anything you want. You can do anything you want. ठीक है, आज हमारे पास फ्रीडम है to do anything that we want. बट खुद का ही गला काट दें, ये भी तो फ्रीडम है. तो क्या वो एम्पावरमेंट है? खुद ही को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करवा दें, क्या वो एम्पावरमेंट है? खुद की डिग्निटी का गला काट दें, क्या वो एम्पावरमेंट है? क्या एम्पावरमेंट नहीं है? दिस इज द बिगेस्ट डिस्प्ले ऑफ योर ओन लोएस्ट सेल्फ वर्थ, जिस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अदरवाइज ये जो चीज है, आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी क्लियरली, ये जो चीज है, इफ इट इज लेफ्ट untreated, it can even lead to some mental illnesses going forward. ठीक है, ये जो attention seeking, people pleasing एंड लोगों का वैलिडेशन पाने के लिए जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, वो चीजें आप कर रहे हो. बिकॉज जैसा मैंने बताया, इसमें बहुत रिस्क है. आपका हेल्थ रिस्क है. somebody can be brutal to you, somebody can beat you up in that state, in that situation. Somebody can even kill you. Somebody can invite even their friends and relatives. Because when you are doing this, the other person does not respect you naturally. Because they have not earned it in that relationship. You are giving it for free. So the other person can do anything with you. You are running so much risk. Right? So, females को अपने vulnerabilities पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because all these things leads to crimes related to women as well. ठीक है, दे बिकम सो मच अंधे इन प्यार कि वो फिर घर से भी भाग सकते हैं, अपने घर से पैसे भी चुरा सकते हैं, मम्मी के गहने भी बेच सकते हैं जस्ट टू हेल्प देयर बॉयफ्रेंड्स. ठीक है, जो बॉयफ्रेंड को उन्होंने अपने साथ रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वैलिडेशन कि कोई तो है मुझे कॉल करता है, कोई तो है मुझे मैसेज करता है, अदरवाइज तो मेरी लाइफ, मतलब उनको फीमेल्स डू वन थिंग इन लाइफ ना, कि अपने आप पे काम कर ले एंड थोड़ा अगर अपना अकेलापन झेलने की ताकत उनमें आ जाए. ठीक है, कि आई एम ओके दैट आई एम सिंगल, but at least I will not have a trash kind of person in my life. I will not at least attract a trash kind of person in my life just because I need some validation. अगर women इस सेल्फ एस्टीम पे थोड़ा काम कर ले, अपने आप पर थोड़ा सशक्त कर ले, आपके लाइफ के 100% रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म हो जाएंगे. आप गलत इंसान चुनोगे ही नहीं. मतलब 100% प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगे, वो तो कुछ तो रहेंगे, बट यू विल एटलीस्ट नॉट अट्रैक्ट द टॉक्सिक पीपल. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट दोज एनर्जी वेम्पायर्स इन योर लाइफ, जो आप ही के पैसे से खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे ऐश करेंगे, आप ही को एक्सप्लॉइट करेंगे, फिर आप ही को बिट्रे भी करेंगे. ऐसे लोगों को तो अट्रैक्ट नहीं करोगे आप. if you are going to work on your self esteem, if you are going to work on your boundaries, if you are going to work on your standards, if you are going to work on your self worth issues, if you are doing this, then अगर आपको लग रहा है कि आपका रिलेशन आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, मतलब लोकल बस की तरह आ रहा है जा रहा है टाइप हो रहा है, तो ये सिलसिला बंद हो जाएगा. हाँ, थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम होगा. ठीक है,
कि सपोज एक रिलेशनशिप था, उसमें कुछ प्रॉब्लम था, तो आपने उस पर काम करना शुरू किया सो दैट कि ये चीजें फिर से मिस्टेक रिपीट ना हो. यू हैव दिस पेशेंस इन योर सेल्फ दैट यू कैन बी अलोन फॉर सम टाइम. क्योंकि फीमेल्स का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि दे डोंट वांट टू बी अलोन. दे ऑलवेज नीड समबडी अराउंड देम बिकॉज वीमेन आर वेरी इमोशनल क्रिएचर्स. उनको हमेशा इमोशनल वैलिडेशन चाहिए, इवन द मैरिड वंस. If the husband is not treating them right for somebody, they will start talking to their exes. Why? Because as you know, mostly women cheat इसलिए करते हैं because of their emotional issues. हाँ, कुछ females आजकल sexual reasons के लिए भी cheating कर रहे हैं. That's another population. I'm not relating to that as of now. But जो emotional cheating कर रही है, why? Because emotion बहुत ज्यादा है ना फीमेल्स का. तो अगर वो चीज रेगुलेटेड नहीं होगा, इफ यू आर नॉट रेगुलेटिंग योर इमोशंस वेल, यू विल गेट इनटू थिंग्स दैट विल गेट यू इनटू ट्रबल. राइट. सो एज ए क्विक रेमेडी इन दिस वीडियो, देखो इनर वर्क तो मस्ट है इस चीज के लिए, लेकिन एज ए क्विक रेमेडी in this video I will tell you कि start read or chanting something related to some female deities. जैसे कि माँ लक्ष्मी के 108 नाम हो गए, 1000 नेम्स हो गए. ठीक है. इफ यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट योर फेमिनाइन एनर्जी जर्नी, तो यू कैन स्टार्ट चैंटिंग दिस सिंपल थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई कॉम्प्लिकेटेड बीज मंत्रा करो. लक्ष्मी जी का बीज मंत्र श्रीम बहुत लोग चैंट करते हैं. आई हैव ऑल्सो डन इट. इट्स वेरी यूजफुल, इट्स वेरी गुड. बहुत अच्छा फील होता है. इट्स फील्स वेरी काम. ठीक है. सुबह शाम आप उसको चैंट कर सकते हो, कभी भी आपको लगे आप चैंट कर सकते हो. एंड हर दिन एक बार लक्ष्मी जी का 108 नेम्स या फिर 1000 नेम्स, इफ यू कैन डू इट, इट्स वेरी गुड. आप चैंट करना स्टार्ट करो. यू विल सी देयर इज एन इंक्रीज इन योर फेमिनाइन एनर्जी. यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ. ठीक है. जो वेसल आपने खाली कर दिया था अपने फेमिनाइन एनर्जी का, वो सेक्रेड सेक्सुअल एनर्जी, you will feel that that is getting replenished again. You will again feel like a woman inside. ठीक है. So this is all for today's video, and it's just my message as a woman to another woman that be safe and work on yourself, because you are worth much more than all these things. Right? It does not matter how you look, whether you are financially stable or not. Okay. And what's your age, whether you are 19 or 39 or 49, you deserve better things in life. Okay. So this is all for today's video, and for personal guidance आप मुझे WhatsApp कर सकते हो. You can book your sessions and WhatsApp coaching. So see you in my next video. Till then, you take care and bye-bye.